Now, hello students. This is time for your chemistry class. Now join immediately. Yes. तुम लोगों का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर चल रहा है जो लगभग अब समाप्त होने पे है। तो उसी का लास्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इससे पहले वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये सारी चीज़ें तुम लोगों ने पढ़ी हैं। तो आज तुम लोगों को बताएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, किस तरह से आगे डेवलपमेंट हुआ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद नई थ्योरी का। तो प्लीज ज्वाइन इमीडिएटली एंड म्यूट योरसेल्फ। यस, केमिकल बॉन्डिंग। यस, हेलो, वेलकम एवरीवन। आवाज आ रही सबको? हेलो, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या इसको हुंड मुल्कन थ्योरी भी कहते हैं। इट इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी टू एक्सप्लेन कोवैलेंट बॉन्डिंग। दिस थ्योरी वाज proposed by Hund and Mulliken in 1932 to explain those facts which could not be explained by valence bond theory. इससे पहले की जो थ्योरीज तुम लोगों ने पढ़ी हैं उसको पढ़ते रहना ताकि आगे की चीजें समझ में आए। Leonard Jones and Colson also contributed in the development of this theory, because this theory is based on the concept of linear combination of atomic orbital. This theory is based on the concept of linear combination of atomic orbital. This is also called as LCAO theory. Short में इसको कहते हैं LCAO theory. LCAO means linear combination of atomic orbitals. The following facts could not be explained by valence bond theory, and molecular orbital theory successfully explained them. Now, valence bond theory could not clarify the bond formation in electron deficient molecule. जहाँ इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होगी वहाँ पे ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऐसे बॉन्ड को फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। सेकंड पॉइंट, द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2 molecule, and valence bond theory failed to explain phenomenon of resonance. Besides these, several other facts could be explained by valence bond theory. Now, important assumption of molecular orbital theory. In atom, electrons residue in atomic orbital, while in molecules they occupy molecular orbitals. Second, when a bond is formed between two atoms, atomic orbitals having same energy and symmetry, both same होना चाहिए, same energy and symmetry combine to form molecular orbital. This is the point. When a bond is formed between two atoms, atomic orbitals having same energy and symmetry combine to form molecular orbital. They are formed by linear combination of atomic orbitals. The number of
molecular orbital formed is equal to the number of atomic orbital combined, that is two atomic orbital combined to form two molecular orbitals, यानी जितनी molecular orbitals combination में participate करेंगी उतने ही number की molecular orbital बनेंगी. The molecular orbital having lower energy is called bonding molecular orbital, while molecular orbital with higher energy is called anti-bonding molecular orbital. This is the point. The molecular orbital having lower energy is called bonding molecular orbital, while molecular orbital with higher energy is called anti-bonding molecular orbital. The energy of molecular orbital, which is formed by addition of wave function of atomic orbitals, that is psi a plus psi b. वेव फंक्शन से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होती हैं, तो जब साई ए प्लस साई बी इज लोअर एंड दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द बॉन्ड. फिर से देखो, द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल साई ए एंड साई बी. ये क्या है? वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ए एंड बी is lower and they provide stability to bond. These molecular orbital is called bonding molecular orbital. तो जब इस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगी कि इनका वेव फंक्शन साई ए प्लस साई बी होगा, तब these molecular orbital is called bonding molecular orbital. On the other hand, the molecular orbital is formed by subtraction of wave function, that is psi a minus psi b, has higher energy and is called anti-bonding molecular orbital. इस तरह से जैसे ये psi a फंक्शन है एटॉमिक ऑर्बिटल का और ये दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल का है वेव फंक्शन psi b, तो जब ये psi a प्लस psi b बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनती है इस तरह से, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रही है, तब इसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज साई ए प्लस साई बी. और जब ये सब्सट्रैक्शन से बनती है साई ए माइनस साई बी, ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल, तब ये कहलाती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और तब हमको इसको सिग्मा स्टार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एंटी बॉन्डिंग molecular orbital is equal to psi a minus psi b and bonding atomic orbital is equal to psi a plus psi b. Atomic orbitals are monocentric while molecular orbitals are polycentric. In atomic orbitals, electron move under influence of one nuclei. On the other hand, in molecular orbital, electron moves under influence of two nuclei. यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पास एक न्यूक्लियाई होता है, जबकि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो जाती है तो दो न्यूक्लियाई होती हैं, तब इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ करता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई. The atomic orbital represent the distribution of probability of finding electrons around atomic nuclei, while molecular orbital represent the probability of distribution around group of nuclei. In atomic orbitals, electrons are filled on the basis of above principle, Pauli exclusion principle and Ohm's rule. These rules are also applicable to the finding of electrons in molecular orbital. Now, subtraction of wave function psi a minus psi b has higher energy and is called anti-bonding molecular orbital. जैसा अभी बताया तुम लोगों को, जब psi a minus psi b ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के आपस में कंबाइन होंगे, psi b है ये psi a है, जब ये प्लस होंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल. और जब ये psi a माइनस psi b यानी कि हायर एनर्जी होगी,
तो अब ये कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये अभी डायग्राम देखा भी था तुमने, वही डायग्राम है। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह से होता है? एक ऑर्बिटल और दूसरी ऑर्बिटल दोनों कंबाइंड होके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब उनके वेव फंक्शन ऐड किए जाएंगे, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तब बनेगी जब ये जो वेव फंक्शन है वो सब्सट्रैक्ट किए जाएंगे, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज साई ए माइनस साई बी। ये दोनों क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये जो दोनों बन रही हैं ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Atomic orbitals are monocentric while molecular orbitals are polycentric. In atomic orbitals, electrons move under influence of one nuclei. On the other hand, in molecular orbitals, electrons move under influence of two nuclei. Atomic orbital represent the distribution of probability of finding electrons around atomic nuclei. Molecular orbital represent the probability of distribution of electron around group of nuclei. In atomic orbitals, electrons are filled on the basis of above principle, Pauli exclusion principle, Hund rule. These rules are also applicable to the finding of electrons. Now formation of molecular orbital किस तरह से, अभी हालांकि इसको देखा तुमने किस तरह से फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जाएगा। दिस थ्योरी इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये शुरुआत में बताया। द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। First is the energy of atomic orbitals which combine to form molecular orbitals must be comparable, that is equal or almost equal. एनर्जी अगर इक्वल नहीं होगी तो एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाएंगे। एग्जाम्पल इज ए डाइट होमोडाइटॉमिक मॉलिक्यूल, तो कॉम्बिनेशन 1s ऑर्बिटल के बीच होगा या 2s ऑर्बिटल के बीच होगा, लेकिन 1s कभी भी कंबाइंड नहीं होगी 2s के साथ। तो एनर्जी और सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए सेम होना जरूरी है। द सिमेट्री ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच कंबाइंड मस्ट बी सेम अराउंड मॉलिक्यूलर एक्सिस। By convention z axis is chosen as a reference axis. अब जैसे 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड किससे होगी? 2pz से ही कंबाइंड होगी, ये कंबाइंड 2px या 2py से नहीं होगी। तो हमेशा जब p के बीच बॉन्ड बनेगा तो pz के बीच कॉम्बिनेशन होगा, और px py जिस भी तरह से होगा वो आपस में ही एक दूसरे से करेंगे। जैसे pz से कंबाइन होगी, px से कंबाइन होगी, 2py है तो 2py अगले एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल से कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन शुड बी इन सच ए वे दैट मैक्सिमम ओवरलैप में ऑकर। Higher is the extent of overlapping, more is the electron density between the nuclei, and so strength and bond energy will be high. Formation of different molecular orbital by combination of different atomic orbital is explained now. By combination of two s atomic orbitals, s orbitals having combined to form bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. अब ये दो s ऑर्बिटल हैं जिनके वेव फंक्शन है साई ए साई बी, इनकी सिमेट्री सेम है, प्लस प्लस एडिटिव वेव फंक्शन का एडिशन होता है यहाँ साई ए प्लस साई बी, और दोनों इस तरह से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और इनका शेप इस तरह से होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब सब्सट्रैक्शन होगा साई ए साई बी के बीच कब होगा? जब ए प्लस होगी और सिमेट्री यानी दोनों की
चेंज होगी तब सब्सट्रैक्शन हो जाएगा वेव फंक्शन का साई ए माइनस साई बी। तो जब प्लस और माइनस बॉन्ड बनेगा तो इस तरह से ये एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगी, जिसको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। दिस इज द लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस ऑर्बिटल। उसके बाद है 1s प्लस 1s, जो भी यहाँ देखा, तो 1s ns जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो इनके बीच जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनती है उसमें बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, यानी s बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड s एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड anti-bonding molecular orbital is represented by sigma and sigma star. Sigma star means anti-bonding molecular orbital and sigma is represent the bonding atomic orbitals. Plus and minus sign shows symmetry of orbitals, and for additive overlapping both the orbitals must have same symmetry बाई कम्बिनेशन ऑफ 1s 1p ऑर्बिटल। अभी जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन देखा वो s s एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच कम्बिनेशन हुआ तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनी। अब क्या है, बाय द कम्बिनेशन ऑफ s and p ऑर्बिटल। s and p orbital always combine to form bonding molecular orbital. If they overlap laterally, no molecular orbital is formed. Laterally overlapping कैसे होती है, overlapping में देख पढ़ा था, पाई बॉन्ड जब बनता है तो if p orbitals या orbitals laterally overlap, no molecular orbital is formed, because in such case additive and subtractive overlapping occur simultaneously and the two cancel each other. When s and p atomic orbitals combine with each other, then there are two possibilities. When both s and p orbitals have same symmetry, that is plus plus or minus minus, bond sigma bonding molecular orbital is formed, यानी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड। अगर दोनों के बीच s और p के बीच सिमेट्री सेम है तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी। व्हेन सिमेट्री और अपोजिट प्लस माइनस हो जाएगी देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज फॉर्म। lateral overlapping between s and p orbitals bond is not formed. The formation of bonding molecular orbital from s and p orbitals, तो दो पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल फ्रॉम s and p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम दिखाया हुआ है, नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी ये s ऑर्बिटल है लेकिन ये लेटरली जब ओवरलैप कर रहा है तो इसके बीच बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल यहाँ पे नहीं बन रही है, यानी कि ये नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन होगा इस तरह से अगर s के साथ लेटरली p ऑर्बिटल कंबाइन होगी। अब p एंड s यहाँ सिमेट्री सेम हो जाएगी, यहाँ पे प्लस होगा और ये भी प्लस है, तो ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बन रही है ये। इसी तरह यहाँ पे s एंड p सेम सिमेट्री नहीं है दोनों के बीच, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो यहाँ पे क्या बनेगी, एंटी बॉन्डिंग sp एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगी। तो इस तरह से s और p का कॉम्बिनेशन होता है जिससे कि बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो जब इस तरह से ओवरलैप होगा s और p में, और इधर भी जैसे प्लस है ये भी प्लस है, यानी सिमेट्री सेम है, तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी। लेकिन अगर दोनों की सिमेट्री डिफरेंट है तो एंटी बॉन्डिंग, जब एंटी बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल बनती है तो उसको इस तरह दिखाते हैं अलग अलग। इसका डायग्राम इस तरह से होगा। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ टू p ऑर्बिटल, अभी क्या देखा, s और p का कॉम्बिनेशन देखा, अब सिर्फ t p कॉम्बिनेशन देखना है। 2p orbitals may combine in different ways. 2pz orbitals always combine to form
bonding molecular orbital, while px and py always combine to form pi orbital as shown here. तो pz को हम मानते हैं जो है जो बीच में होती है ऑर्बिटल। तो जब pz किसी भी एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल p एटॉमिक ऑर्बिटल यानी pz और pz जिनकी की सिमेट्री सेम होगी वो कॉम्बिनेशन में आएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, तो इस तरह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। इनके बीच कॉम्बिनेशन होगा। ये एटॉमिक ऑर्बिटल थी दोनों जिनके बीच कॉम्बिनेशन हुआ, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी। लेकिन जब इनमें जो एंटी बॉन्डिंग बनेगी उसमें क्या होगा, सिमेट्री दोनों की अलग अलग होगी। ये प्लस है तो इसकी माइनस, तब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी वो क्या होगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो भी इसको इस तरह से नोडल प्लेन के साथ अलग अलग दिखाएंगे। तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बाकी की जो पी एक्स और पी वाई तीन होती हैं पी ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो पी जेड और पी जेड तो आपस में मिलकर के इस तरह से बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना लिया। अब इनके बीच लेटरल ओवरलैपिंग होती है, तो इसके भी पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। वहां क्या था, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रही थी, सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, और यहाँ पे पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी क्योंकि यहाँ लेटरल ओवरलैप हो रहा है। तो जब सिमेट्री दोनों की सेम है, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जब दोनों की सिमेट्री सेम नहीं होगी, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी वो पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी, और इसका डायग्राम हम इस तरह से बनाते हैं। तो ये क्लियर हो गया। जब पी जेड यानी हेड टू हेड ओवरलैप जैसे वहां पे हुआ था, सिमेट्री सेम है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिमेट्री सेम नहीं है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। उसके बाद बाकी के पी एक्स के बीच लेटरल ओवरलैपिंग होगा, तो पहले क्या बन रहा है तुम्हारा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Now bond order and bond stability. Bond order and bond stability. The bond order of a bond can be calculated from the following formula. Bond order is equal to number of electrons in bonding molecular orbital minus number of electrons in anti-bonding molecular orbital upon 2। तो इस तरह से bond order निकाला जाता है। यानी NB means electron in bonding molecular orbital, Na is equal to electron in anti-bonding molecular orbital upon 2. Bond order represent the number of covalent bonds present between the tiro-bonded atoms. Bond order 1, 2 or 3 correspond to a single, double or triple bond respectively. Bond order may be fractional and even zero but never negative. Zero bond order indicate the equal number of bonding and anti-bonding electrons. If bond order is zero, then species will be unstable and will not exist. For example, He2 plus bond order is zero. He2 helium, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका जीरो होता है, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। वाइल H2 प्लस बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, यानी कि ये एग्जिस्ट करता है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो आएगा किसी मॉलिक्यूल का, तो ये बॉन्ड उनके बीच ऑर्बिटल के बीच नहीं बन रहा है और वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर फॉर H2, O2, N2 are 1, 2, 3 respectively. Now comparison of bonding and anti-bonding molecular orbitals. यानी अभी तुम लोग पढ़ते आ रहे हो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी,
तो इन दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन है कि अभी तक जो पढ़ा उसको समराइज किया है कि अगर डिफरेंस पूछा जाए कि एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है तो उसको किस तरह से एक्सप्लेन करोगे। पहले है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इट इज फॉर्म बाय द linear combination of two atomic orbitals when their wave functions are added, that is psi a plus psi b. An anti-bonding molecular orbital is formed by the linear combination of two atomic orbitals when their wave function are subtracted, that is psi a minus psi b. यही अभी तक पढ़ा है। The second point, the electron density increase in the region between the nuclei of the bonded atoms. The electron density increases in the region between the nuclei of the bonded atom. It therefore stabilizes the molecules. In antibonding molecular orbital, the electron density decrease in the region between the nuclei of bonded atoms and increase in the space always from the internuclear region. Is therefore bring instability. Third point, bonding molecular orbital is its energy is less than the combining atomic orbital. Molecular orbital has a less energy than the combining atomic orbital, and in anti-bonding molecular orbital, its energy is more than the combining atomic orbitals. Fourth point, the electron present in the bonding orbitals bring attraction between the two atoms. And in anti-bonding molecular orbitals, the electron present in the anti-bonding orbitals having repulsion between two atoms. Fifth point, these molecular orbitals are donated by sigma, pi and delta, and these molecular orbital, any anti-bonding molecular orbitals are denoted by sigma star, pi star, delta star, etc. It has a no nodal plane, or molecular orbital has a no nodal plane where electron density is zero, जबकि it has a nodal plane. तो इस तरह से ये थ्योरेटिकल बातें थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। तो अगले क्लास में हम जो है इसके कुछ एग्जाम्पल दे करके तुम लोगों को बताएंगे कि किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं। तो आज के क्लास में तुम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ा, उससे पहले भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वेस्पर थ्योरी, सारी थ्योरीज के बारे में तुम लोग स्टडी कर चुके हो। तो इसको ध्यान से इसको भी पढ़ना और उसके बाद फिर नोट्स तैयार करना अपने। तो आज का क्लास सब ख़त्म होता है, फिर कल के क्लास में हम इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एग्जाम्पल दे करके उनके बारे में बताएंगे।